Hello class 7. So we are doing our chapter number 14, electric current and its effect. So our today's topic of discussion is battery. Okay. See, we use the battery in the electric circuits. Now what is battery? How can we make a battery? How can we use a battery in our electric circuit? ये सभी कुछ हम जो है अपने आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे. ओके. सो यहाँ आपको क्या दिखाई दे रहा है? Here we have electric cells. Okay. So here we have 4 electric cells, and we have already studied about the electric cells in class 6. So let us have a quick revision about a cell. A cell has 2 terminals. One is positive terminal and second one is negative terminal. See, positive terminal is marked with a plus sign. Okay, you can see here plus sign, and a negative terminal is marked with a minus sign. Okay, so in a cell, here you can see a cap also. It is the positive terminal. Okay, so this is all about the electric cells. Now what will happen if we will connect all these cells? Okay, how can we connect the cells? We can connect them using the conducting wires. Okay, so let us try connecting all the 4 cells. See, what we have done here, we have connected the terminals of these cells. Now, किस तरीके से हमने कनेक्ट किया है? दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग. तो देखिए यहाँ पर हमने कैसे कनेक्ट किया है. यहाँ पर प्लस टर्मिनल है, ये एक वायर है रेड कलर की जिसको हमने कनेक्ट किया है, और इसका ये जो सेकेंड एंड है ये एज इट इज हमने ओपन जो है इसको रखा है. नाउ वी हैव कनेक्टेड द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल 1 टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल सेकेंड. लेट अस मार्क हियर सेल 1, 2, 3 and 4. Okay. Now the negative terminal of second cell is connected well to the positive terminal of our third cell. Okay. And negative terminal of third cell is connected to the positive terminal of fourth cell. And negative terminal of fourth cell is left open. ओके इसे हमने ओपन ही रखा है. अब यहाँ पर जो ध्यान देने की बात है वो क्या है कि आप एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करिए कि हमने जितने भी सेल हैं जिसमें हमने कनेक्ट किए हैं टर्मिनल्स को, हमने अपोजिट टर्मिनल्स कनेक्ट करे हैं. ओके, अपोजिट मीन्स वी हैव कनेक्टेड द नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव वन and the positive terminal to the negative one. Right? In each cell we have 2 terminals now. But what we have done, we have connected negative to positive and positive to negative. This is a very important thing. While connecting the cells, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप टर्मिनल्स कनेक्ट करें, आप अपोजिट टर्मिनल ही कनेक्ट करेंगे. आप नेगेटिव टर्मिनल्स जो हैं, आप सेम टर्मिनल्स जो हैं उन्हें कनेक्ट नहीं करेंगे. मीन्स आप हमेशा प्लस को माइनस से कनेक्ट कर सकते हैं या आप माइनस को प्लस से कनेक्ट कर सकते हैं. ये दोनों ही वेज आपके राइट होंगे. लेकिन इन केस अगर आप प्लस टर्मिनल को पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट कर देते हैं तो ये आपका रॉन्ग होगा. ओके, ऐसे ही अगर आप माइनस नेगेटिव टर्मिनल्स को, मतलब 2 सेल्स है ना, 2 सेल्स के अगर आप नेगेटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट करेंगे तो ये भी आपका टोटली रॉन्ग होगा. ओके, नेक्स्ट हम इसके बारे में स्टडी करेंगे कि ये रॉन्ग किस लिए होगा. Here is our activity in which we will see how to connect different cells together to make a battery and how to use that battery in an electric circuit. Okay, so here we have an electric circuit in which one cell is connected. Its positive and negative terminals are shown well and the voltage difference reading is 1.53. Now what if we need more than this voltage in a circuit? In this case what we do, we connect more than one cells together.
Now the important is this, that how to connect these cells, how to connect the terminals of these cells. So let us see. Here we are going to connect our second cell. When we connect the second cell, its negative terminal is connected to the positive terminal of first one and the reading is 3.06. We will connect the third cell. Now reading is 4.60 approximate. Okay. Now connect the fourth cell. Now note down the reading. It is 6.12. Now see, what we observe here, that as we connect the next cell to the first cell, then its voltage get added on. ठीक है, वोल्टेज जो है वो एड ऑन हो रही है, तो उससे हमारी जो रिक्वायरमेंट है सर्किट की वो कंप्लीट हो जाती है. ओके, इन केस वी नीड सपोज अप्रॉक्सीमेट 6 voltage, but if we will connect the one cell, then it will not work. So what we will do, we will connect the 4 cells together, right? So and important thing is we should connect the opposite terminals together, not the same terminals. Now we will see what will happen if we will connect the same terminals together. Here we are going to reverse our 4 cell. We will connect plus terminal and see its voltage get dropped to 2.98 approximate. Okay, so if the opposite same terminals get connected, then voltage will get decreased. Okay, so we should take care of this, that opposite terminal should be connected, right? So this is the concept of making a battery from the combination of cells connected in series in an electric. देखिए, अब जो हमने सेल्स कनेक्ट करें, हमने 4 सेल्स जो है एक्टिविटी में कनेक्ट करें ना एक दूसरे के साथ और इलेक्ट्रिक सर्किट में कनेक्ट किया, तो उन्हें हम 4 सेल्स ना कह के हम उन्हें क्या बोलते हैं, बैटरी. ओके, बैटरी ऑफ 4 सेल्स, राइट. सो व्हाट इज़ बैटरी? व्हेन वी कनेक्ट मोर देन 1 सेल, एक से ज़्यादा सेल्स को अगर हम सर्किट में कनेक्ट कर देते हैं तो उसे हम बैटरी कहते हैं. जैसे आप इस डायग्राम में अच्छे से देख सकते हैं, यहाँ पर आपको क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पर आपको 2 सेल्स जो हैं आपको दिखाई देंगे. ये 2 सेल्स आपस में यहाँ पे टर्मिनल से वेल कनेक्टेड हैं, तो इसको हम 2 सेल्स ना कह के इसको हम क्या बोलेंगे, बैटरी. ओके, तो ये हमारी हो गई बैटरी, बैटरी ऑफ 2 सेल्स. और एक्टिविटी में क्या थी हमारी, बैटरी ऑफ 4 सेल्स. ओके, सो अब ये देखिए, ये बैटरी जो है इसको हमने कनेक्ट किया है. किस में कनेक्ट किया है हमने इसको सर्किट में कनेक्ट किया है, जिसके अंदर हमने एक बल्ब कनेक्ट किया है, एक स्विच कनेक्ट किया है और बैटरी कनेक्ट करी है. अब इन तीनों को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स. ठीक है, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स. और इन कंपोनेंट्स को हम एक साथ कनेक्ट किसके थ्रू करते हैं, हम करते हैं कनेक्ट थ्रू वायर्स. ये देखिए जो ब्लैक कलर में आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये वायर्स हैं. ठीक है, वायर्स हम कौन सी वायर्स लेते हैं, हम कॉपर वायर या एल्युमिनियम वायर, कोई भी कंडक्टिंग वायर जो है ले सकते हैं. ओके, तो यहाँ पर ये हो गया कनेक्शन ऑफ बैटरी इन अ सर्किट. ओके, तो नेक्स्ट अब हम रीड करते हैं, व्हाट इज अ बैटरी. दिस इज द क्वेश्चन दैट यू हैव टू राइट डाउन इन योर नोटबुक्स. ओके, सो बैटरी क्या हुआ, बैटरी इज अ डिवाइस इन विच अपोजिट टर्मिनल्स of more than 1 cells are connected to each other, right? बैटरी क्या है, एक ऐसा डिवाइस हो गया जिसमें एक से ज़्यादा सेल्स हम ले रहे हैं, उनको हम एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं. और कनेक्ट कैसे कर रहे हैं, अपोजिट टर्मिनल्स उनके हम कनेक्ट कर रहे हैं विद एक्सटर्नल कनेक्शंस. विद एक्सटर्नल कनेक्शंस का यहाँ पर क्या मतलब हुआ कि जो भी हमारी बैटरी है उसमें जो एंड में हम सेल लगाते हैं ना, जैसे हमने अपनी एक्टिविटी के अंदर भी 4 सेल्स लिए, तो फर्स्ट सेल और फोर्थ सेल उनके एक साइड हम ओपन रखते हैं. ओके, जैसे कि अभी एक यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर एक्सटर्नल कनेक्शन की बात करते हैं तो हमारे यहाँ एक्सटर्नल कनेक्शंस कहाँ होंगे, एक तो इस एंड पर और इस एंड पे. यहाँ पर तो टर्मिनल्स कनेक्टेड है ना आपस में, लेकिन जो एंड होंगे दोनों सेल्स के, इनको हम बोलेंगे एक्सटर्नल कनेक्शंस. और ये एक्सटर्नल कनेक्शंस का क्या काम होता है, यहीं से हम वायर्स के थ्रू बाकी सर्किट से कनेक्ट करते हैं बैटरी को. ओके, सो
What is a battery? It is a device in which opposite terminal of more than one cells are connected to each other with external connections. Okay, so next question is what is the requirement of a battery? हमें बैटरी की किसी भी सर्किट में रिक्वायरमेंट होती ही क्यों है? सो देखते हैं। देखिए, किसी भी बैटरी की रिक्वायरमेंट होती है। बैटरी इज यूज्ड इन अप्लायंसेस where we need more current for appliances to work properly। हमें उन अप्लायंसेस में, ठीक है, घर में हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होते हैं लाइक आवर फैन, बल्ब, ट्यूब, ऑल दीज आर अप्लायंसेस। जिनमें अप्लायंसेस में अब अगर हमें ज़्यादा करंट चाहिए तो हम क्या करें? जैसे कि हमने अपना सर्किट है, उसमें हमने एक 0 वॉट का बल्ब लगाया, उसके लिए एक सेल भी सफिशेंट होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, ज़्यादा पावर वाला, ज़्यादा वॉट का अगर हम बल्ब यूज़ करेंगे तो वो तो उस सेल से नहीं वर्क करेगा, क्योंकि जो उस सेल की जो वोल्टेज वो देगा वो सेल बल्ब के लिए इनफ नहीं है, तो हमें ज़्यादा सेल कनेक्ट करने पड़ेंगे ना। तो इसीलिए जहाँ भी हमें ज़्यादा करंट की ज़रूरत होती है वहाँ हम ज़्यादा सेल्स कनेक्ट करके एक बैटरी फॉर्म कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाती है रिक्वायरमेंट ऑफ बैटरी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टर्मिनल्स ऑफ सेल शुड बी कनेक्टेड टू मेक अ बैटरी। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं दैट अपोजिट टर्मिनल्स ऑफ सेल शुड बी कनेक्टेड टू ईच अदर इन अ बैटरी। ओके, एग्जाम्पल भी है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल शुड बी कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ नेक्स्ट सेल। ओके, इसी को अगर आप रिवर्स करके भी लिखते हैं तो वो भी ठीक होगा, दैट नेगेटिव शुड बी कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल।